Assalamu alaikum. Dr. Altaf, Dr. Maria will be presenting the first case, so I think we should start. Please go ahead, please. Assalamu alaikum. My name is Kiran Ahmed and I am the Director of Operations at PARSA ECHO Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to another ECHO session in series of Hepatitis ECHO. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with experts, and our expert for tonight's session is Professor retired Altaf Alam Saab. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. PARSA ECHO Pakistan started as hub in 2017 and got the status of first super hub in Pakistan in 2021. Following the guidelines of Project ECHO with an objective that community providers learn through video technology to participate in guided practice with specialist mentors. They acquire new skills that allow them to treat patients otherwise referred out. Patients with chronic condition get high quality care without travel and waiting. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions and use the raise hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Janas and Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. You are requested to fill it as soon as possible to avail the opportunity of CMEs. For the convenience of folks, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. If you are interested in our publication, please fill the form shared by Uzair at the end of the session. Our expert for tonight's session, Professor retired Altaf Alam Saab, is former professor and head of gastroenterology hepatology department at Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Sheikh Zayed bin Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical and Dental College, Lahore, Pakistan. He is serving as course director at PARSA ECHO Pakistan since the beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of content, evaluating speakers and feedback evaluation. Currently, he is a consultant gastroenterologist, hepatologist at Evercare Hospital, Lahore. We have two cases today. Dr. Maria will present the first case and Dr. Amna will be presenting the second case. So I will hand over to Dr. Maria. Assalamu alaikum, everyone. Can you hear me? Yes, we can. 24-year female, a medical student, was tested positive for hepatitis B surface antigen positive during a blood donation program 2 years back. After consulting with some gastroenterologists, she advised undergoing hepatitis B DNA PCR, which came out positive. On further investigations, her LFTs were normal 2 years back. On follow-up, with 6 months follow-up, it was remained normal. And hepatitis D DNA PCR on 2 years back, initial PCR were 117 and further testing 38 viral load. And hepatitis E AB was reactive and hepatitis E AG was non-reactive. And anti-delta and alpha fetoproteins remained negative throughout the follow-up, and Hep B core total was reactive and Metakever scores was 7. And ultrasound throughout became unremarkable. And patient was not advised on antiviral treatment and remained on close follow-up. And on further 6-month follow-up, she came out surface antigen negative and hepatitis B DNA PCR also negative, which came spontaneously negative. Spontaneously, it was came out negative without any antivirals. She further advised to check her anti-HBS, which initially done on 16th May 2022, it was 9.38. And on further, she again checked her anti-HBS that became decreased, dropped to 6.5 on 20th September 2022, and then it further dropped on less than 2.2 on 16th May 2023.
Patient was very concerned and want to know any vaccination, hepatitis B vaccine may help her boost immunity or may cause harm in already exposed to virus. So my question is, should the patient be given a vaccination now or no any benefit of already exposed patient? Thank you. थैंक यू डॉक्टर मारिया, आपने बड़ा थॉट प्रोवोकिंग सिनारियो प्रेजेंट किया है. सो जो हमारे पास ये पेशेंट था 2 साल पहले, टिपिकल हेपेटाइटिस बी इनएक्टिव कैरियर, या जिसको ईजल गाइडलाइंस कहती हैं ई एंटीजन नेगेटिव इन्फेक्शन, नॉट हेपेटाइटिस, क्योंकि इसकी ई एंटीजन नेगेटिव है, डेल्टा नेगेटिव है, एलएफटी नॉर्मल है, कोर तो पॉजिटिव होगा ही. सो अ टिपिकल केस ऑफ इनएक्टिव कैरियर. सो बहुत अच्छा डिसीजन था कि इसको ट्रीट नहीं करना, क्योंकि वायरल लोड इज ऑलरेडी 117 एट दैट टाइम, और बाद में 6 मंथ फॉलो अप पे वो ऑलमोस्ट 0 के करीब है, 38. जब इसको मजीद फॉलो अप पे देखा गया तो सरफेस एंटीजन डिसअपीयर हो गया और डीएनए भी नेगेटिव हो गया. एंटीबॉडीज एडवाइज की गई, एंटी एचबीएस, जो कि एट द बेस लाइन 9.38 थी. कहा यह जाता है कि अगर 10 से कम हो तो पेशेंट इम्यून नहीं है और उसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन है. लेकिन ये सिनारियो थोड़ा सा फर्क है. ये पेशेंट को एक्सपोजर हुआ है और उसमें बी वायरस गया है. सो ऐसे पेशेंट्स में सीरो कन्वर्शन अगर हो जाए, यानी एंटीबॉडीज अगर अपीयर हो जाएं, तो देन दे आर लॉन्गर लास्टिंग. और उसमें जो वैक्सीनेशन है उसकी इंडिकेशन सिर्फ चंद सिचुएशंस में होती है. तो डॉक्टर मारिया, इसको आपने क्या कहा था अपने तौर पे, और क्या कहना चाहेंगे अगर मैं आपसे पूछूं? जी सर. तो सर आपने आई थिंक वैक्सीनेशन नहीं करनी चाहिए और प्रिवेंशन करना चाहिए फर्दर, क्योंकि वो हेल्थ वर्कर है, नीडल प्रिक और बहुत सारे जो हमारे पास हैं, प्रिवेंशन इज बेटर. राइट. सो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस सिनेरियो में आप सरफेस एंटीजन एंटीबॉडीज जो हैं वो चेक ही नहीं करते. लेकिन अगर आप चेक करें तो वैक्सीनेशन की इंडिकेशन क्या होगी? नंबर 1, पेशेंट एक्वायर्ड इम्यूनोसुप्रेशन है, जैसे HIV हो उसको, जैसे उसको CKD हो और वो डायलिसिस पर हो. और इन पेशेंट्स को हम रेगुलर सर्वेलेंस पे रखते हैं वैक्सीनेशन के बाद भी, और अगर इवन वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी हो जाए, और अगर उनकी एंटीबॉडी लेस देन 10 आए तो आप उनको वैक्सीनेट करते हैं. नॉर्मली इन्फेक्शन के बाद एंटीबॉडीज अगर अपीयर हो जाएं या वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडीज अपीयर हो जाएं तो दे आर लॉन्गर लास्टिंग. लेकिन वक्त के साथ उनका टाइटर फॉल करता है, जैसे इस पेशेंट में फॉल किया, और आपने देखा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 9.38 से लेस देन 2.2 आ गए. ये नॉर्मल फिनोमेना है. एंटीबॉडीज जो HBS की आइदर आफ्टर इन्फेक्शन और आफ्टर वैक्सीनेशन फॉल करेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन अगर इसको दोबारा एक्सपोजर होगा तो एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स होगा. जो मेमोरी सेल्स हैं उनमें ये मेमोरी मौजूद है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की, और वो फौरन बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाएंगी और इसको प्रिवेंट करेंगी इन्फेक्शन को. सो अगर दोबारा एक्सपोजर होता भी है तो ये anamnestic response will take care of it. So generally speaking, unless the patient is HIV positive,
or CKD on hemodialysis or on immunosuppressive drugs due to organ transplant or other autoimmune disorders, हमें anti-HBs चेक करने की जरूरत नहीं है जनरल पॉपुलेशन। हाँ, अगर आपने डॉक्टर को वैक्सीनेट किया है तो उसके बाद उसको एंटीबॉडीज जरूर चेक करनी चाहिए, क्योंकि आप देखना चाहते हैं कि सीरो कन्वर्शन हुआ है या नहीं। जनरली स्पीकिंग हेल्दी एडल्ट्स में ऑलमोस्ट 100% एंटीबॉडी रिस्पॉन्स आ जाता है, और एक दफा सीरो कन्वर्शन यानी anti-HBs अपीयर हो जाए और 10 साल के बाद चाहे उसका टाइटर कम भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स विल टेक केयर ऑफ एनी फ्यूचर एक्सपोजर्स। यहां पर एक और इस पर्टिकुलर केस में एंटीबॉडीज सीरो कन्वर्शन हुई है, एंटीबॉडी टाइटर फॉल किया है, जो कि वैक्सीनेशन और इन्फेक्शन दोनों के बाद फॉल करेगा। सीरो कन्वर्शन हुई है, शी इज हेल्दी, सो शी डज नॉट रिक्वायर वैक्सीनेशन। यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि मेडिकल स्टूडेंट आपने केस सिनारियो में बताया, डॉक्टर्स के लिए जो कि एक्सपोजर प्रोन प्रैक्टिसेस करते हैं, उस यानी उनसे पेशेंट को ट्रांसफर होने का चांस होता है, उनमें हेपेटाइटिस बी डीएनए अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा हो तो उनको ट्रीट किया जाता है, इवन इफ इट इज नॉट मोर देन 2000, जो कि नॉर्मल इंडिकेशन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। ये अब लोकल पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मसलन यूरोप में 2000 लेते हैं, यूके में 200 लेते हैं, यूएस में लेस देन 2000 लेते हैं। सो ये आपको लोकल से देखना पड़ेगा कि हमारी पॉलिसीज क्या हैं उस कंट्री में जहां पर एक डॉक्टर ने एक्सपोजर प्रोन प्रैक्टिसेस करनी है जो कि जिसमें रिस्क होता है। सो एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि अगर डीएनए यूके में एक्सपोजर प्रोन प्रैक्टिशनर का 200 से ज्यादा हो तो उनको इलाज देके 200 से कम किया जाता है, और यूएस में 2000 से कम हो तो उनको इलाज देकर इससे 2000 से ज्यादा हो तो उसको 2000 से कम किया जाता है, ताकि इनसे ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रैक्टिस ना हो। सो ये लोकल आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने होते हैं व्हेन यू आर डीलिंग विद अ बी पॉजिटिव डॉक्टर, जिसका डीएनए पॉजिटिव हो, उसकी वैल्यूज देखकर रिकमेंडेशन देनी होती है। सो इस पर्टिकुलर केस में स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई इनएक्टिव कैरियर स्टेट में, और एंटीबॉडीज बनी, ऑल्दो उसका टाइटर 10 से कम था, बट I personally believe that they do not require vaccination unless they are HIV positive, immunosuppressed, either due to disease or due to treatment. So I'll stop here. Of course, ये a difficult question है. People will have their own opinion. किसी का कोई और व्यू पॉइंट है यहाँ पर जो अपना व्यू पॉइंट देना चाहे इस पर्टिकुलर केस के बारे में? Anyone? सर बाकी यही बात है कि हर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का अपना एक वो है एक्सपीरियंस है, और वो जिनको फॉलो अप कर रही हैं, ही एडवाइज्ड हर, वो मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी है, बूस्टर डोज टू बिल्ड इम्यूनिटी। तो इस वजह से आई थॉट कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ उसको, फिर कुछ हम आगे करें। Will it do any harm? Maybe or may not. No, I'm it will not do confused. any harm. अगर आप सरफेस एंटीजन चेक किए बगैर वैक्सीनेशन करते हैं किसी को और वो पॉजिटिव था तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसको जरूरत नहीं है। सो वैक्सीनेशन causes no harm either in positive or negative। और अगर ये ऐसा सिनारियो है, ये ऐसी सिचुएशन है जहां पे गाइडलाइंस क्वाइट है, बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है, अगर आप बहुत एक्सप्लोर करें, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लें तो वो भी डिवाइडेड होगी। सो आई डोंट माइंड, यू कैन वैक्सीनेट और यू कैन जस्ट रीअश्योर द पेशेंट। इफ द पेशेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, आपसे बता दे कोई नुकसान नहीं है, गो अहेड, गेट द वैक्सीन।
full stop. So ये दोनों situations में it is okay. This is beyond the guidelines और इसमें expert opinions vary करेंगी, definitely vary करेंगी. As far as I'm concerned, सीरो कन्वर्शन हो जाए वैक्सीनेशन के बाद या इन्फेक्शन के बाद, तो दिस इज लॉन्ग लास्टिंग अनलेस you have immunosuppression. So I would not advise vaccination. I would just reassure. Okay, But thank you, as I sir. said, opinions will vary. और कोई Thank you. डॉक्टर मारिया के अलावा कोई कमेंट करना चाहे प्लीज? Sir, there is a question in chat as well. Okay, I'll have a look. Okay. बायोलॉजिकल्स अगर आपने अल्सरेटिव कोलाइटिस में ट्रीट करना है तो इट्स ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू चेक ट्रिपल टेस्ट, HBsAg, anti-HB कोर और anti-HBs. अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, कोर नेगेटिव है, एंटीबॉडीज नेगेटिव है, तो गो हेड वैक्सीनेट. अगर सरफेस एंटीजन नेगेटिव है, anti-HBc पॉजिटिव है, तो सिंगल और anti-HBs नेगेटिव है, तो देयर इज अ रिकमेंडेशन कि इसको आप वैक्सीनेट कर सकते हैं. ऑल्दो क्योंकि ये फॉल्स पॉजिटिव anti-HBc सिंगल टेस्ट आ सकता है. अगर anti-HBs पॉजिटिव है और anti-HB कोर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ये आइदर एक्सपोजर हो चुका है, एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है. यहां पर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि सरफेस एंटीजन नेगेटिव, anti-HBc पॉजिटिव, आपने वैक्सीनेट भी कर दिया, एंटीबॉडीज भी चेक कर ली क्योंकि ये इम्यूनोसुप्रेस्ड पेशेंट है, आप इसमें सीरो कन्वर्शन कंफर्म करना चाहेंगे, और उसके बाद आपने अगर इसको कोई ऐसी थेरेपी इन फ्यूचर देनी है, जैसे लिम्फोमा में आप रिटुक्सिमैब देते हैं, तो anti-HBc पॉजिटिव पेशेंट को एंटीवायरल प्रोफिलैक्सिस भी देनी है. सो ये इंपॉर्टेंट है कि anti-HBc, और इसीलिए हमने ट्रिपल टेस्ट किया. हमने सिर्फ सरफेस एंटीजन चेक नहीं किया, हमने सरफेस एंटीजन भी चेक किया है, anti-HBc भी चेक किया है और anti-HBs भी चेक किया है. और ये ट्रिपल टेस्ट ही होना चाहिए. डीएनए की कोई जरूरत नहीं है अनलेस सरफेस एंटीजन पॉजिटिव आए. तो ये सिचुएशन इंपॉर्टेंट है उन मरीजों के लिए जिनमें आप इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी दे रहे हो. तो इन्फ्लिक्सिमैब जिसको आपने देनी है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, उसको ये ट्रिपल टेस्ट करें और बेस्ड ऑन दिस टेस्ट आप ये फैसला करें कि आपने वैक्सीनेट करना है या आपने ट्रीट करना है. सो प्रोफिलैक्टिकली चाहे, सो आपने ये फैसला उस वक्त करना है. Should we move to the other case? If there are any questions regarding this case? किसी के पास ये बड़ा अजीब सा सिनारियो है. एज आई सेड, ओपिनियन विल बी डिवाइडेड. कोई और इस पे कोई कमेंट करना चाहे? तो जैसे मैंने कहा, सिंपल तो ये है कि वैक्सीनेट की जरूरत नहीं है, रीएश्योरेंस. लेकिन अगर आप करते हैं तो यू आर नॉट डूइंग एनी हार्म टू द पेशेंट एंड यू आर नॉट कमिटिंग अ क्राइम बिकॉज इस पे गाइडलाइंस आर क्वाइट. सो बोथ वेज इट इज ओके. So no comments. So let's move to the next question or So, scenario. Sure. Thank you. Dr. Amna will be presenting the second case. Uzair, you can share the second case, please. Thank you. Over to you, Dr. Can you hear me? Walaikum salam. Yes, Yes, we can. Second case is a 54 years old male non-smoker was diagnosed with hepatitis C in 2010. He started taking AVT in 2022, 6/12 soft at Raiba for 1 month only, and then left. Now in June 2023, his PCR is detected. There is no family history of hepatitis C or hepatocellular carcinoma, and no other comorbidity is attached to patient. Investigations are HB was 13.0 in
2022, now 13.1. TLC was 6.7, now 9.3. Platelets were 69, now 82. ESR was 60, now ESR was 60. Urea were 29. Creatinine was 1.0, now 0.9. Bilirubin was 1.09, now 1.4. ALT was 99, now 114. AST was 112, now 169. Alkaline phosphatase were 259, now 163. Recent albumin is 3.4. PT-INR 15/1.1. Blood sugar was 84. HbA1c 4.9. Alpha fetoprotein was 6.7 in 2022. APRI score is 5.2. Ultrasound abdomen shows chronic liver disease and mild splenomegaly. What's the treatment plan should we offer him now? Okay. Thank you, Dr. Abna. This is a 54-year-old patient who had HCV for many years और उसका इलाज तकरीबन 12 साल के बाद हुआ 2022 में appropriately with soft dacryba जो हमारे मुल्क में एज अ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है ऑल्दो दुनिया में ये ट्रीटमेंट अब ऑब्सोलीट है और इसकी कोई यूज नहीं होता लेकिन कॉस्ट सेविंग की वजह से और एलिमिनेशन को मद्देनजर रखते हुए दिस इज द चीपेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल एंड so it continues to be used in many countries और गाइडलाइंस इसको परमिट करती हैं कि इन एरियाज में जहां पर फाइनेंशियली लोग ओवरबर्डन हैं वहां पर आप सॉफ्ट डैक को ही अपना बल्क ऑफ ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करें क्योंकि ये चीप है जनरली स्पीकिंग जब ये फाइनेंशियल कंसर्न्स नहीं होते तो इन पेशेंट को सॉफ्ट वेल दी जाती है कॉम्पनसेटेड सिरोटिक है आपका पेशेंट उस वक्त भी प्लेटलेट्स कम थे लेकिन एल्ब्यूमिन आईएनआर दे वर ऑल वेरी गुड सो यू नो ऑल्दो अल्ट्रासाउंड में उस वक्त भी सिरोसिस था अब भी है एप्री इज मोर देन 5 सो ये कोई डाउट नहीं है कि ये सिरोटिक है पहले भी सिरोटिक था और कॉम्पनसेटेड सिरोटिक था अब भी ऑलमोस्ट देयर A6 ही बनता है स्कोर चाइल्ड प्यू क्योंकि एल्ब्यूमिन 3.5 से कम हो गई तो बाकी सब मार्कर्स ठीक हैं सो नाउ ही इज अ कॉम्पनसेटेड सिरोटिक पेशेंट हु हैज फेल्ड 6-month कोर्स ऑफ सॉफ्ट डैक्राइबा मैं यहाँ पर एम्फसाइज करूंगा कि जब भी आप राइबा यूज करें इसको अप्रोप्रिएट डोजेज में यूज करें अगर पेशेंट टॉलरेट कर सके सो वो जनरल प्रिंसिपल के 75 किलोग्राम से कम है तो 1000 मिलीग्राम और 75 किलोग्राम से ऊपर है तो 1200 मिलीग्राम अक्सर हम 800 मिलीग्राम दे रहे होते हैं विच इज नॉट द राइट डोज आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि 400 मिलीग्राम का ही गोली या कैप्सूल मिलता है तो हम कैसे इसको हैंडल करें तो उसका आसान तरीका यह है कि एक दिन 2 दें एक दिन 3 कैप्सूल दें सो एक दिन 1200 एक दिन 800 तो वो एवरेज आउट 1000 कर जाएगा सो ये भी आप कर सकते हैं सो ही वाज ट्रीटेड अप्रोप्रिएटली हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट जीनोटाइप कौन सा है डॉक्टर आमना आप हैं सर जी सर कौन सा जीनोटाइप अभी हमारे मुल्क इसमें नहीं हुआ आई नो लेकिन कौन सा जीनोटाइप अज्यूम करें कि हमारे पेशेंट को है जीनोटाइप 3 जी बिल्कुल ऑफ कोर्स जीनोटाइप 3 इज द मोस्ट कॉमन जीनोटाइप इन आवर कंट्री और हम अज्यूम कर सकते हैं ऑल्दो जीनोटाइप अब हम चेक नहीं करते क्योंकि जो पैन जीनोटिपिक ट्रीटमेंट्स हैं वो सब में काम करती तो
अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर आमना, आप इस सिचुएशन में क्या करेंगी, तो व्हाट इज योर चॉइस नंबर 1? सर अगर हम सॉफ्ट डेक राइबा के साथ चलें, बिकॉज ये पेशेंट की मिस्टेक थी कि उसने डेलिबरेटली ये ट्रीटमेंट छोड़ दिया अपनी ऑन पे, तो फिर हम दोबारा सॉफ्ट डेक राइबा के साथ चलें, कि हम चल सकते हैं? पहली ऑप्शन मेरे माइंड में ये होगी, बिकॉज अगर कॉस्ट वाइज भी चलें तो। राइट। सो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि इसने सॉफ्ट डेक राइबा कंप्लीट नहीं दिया था 6 मंथ्स? जी सर, ये इन्होंने अपनी ऑन पे छोड़ा था थोड़ा सा, मतलब मैंने जब पेशेंट को रिसीव किया था तो हिस्ट्री में तो यही था कि अपनी ऑन पे इन्होंने छोड़ा था, मतलब नॉन सीरियस थोड़ा बिहेवियर था इनका, कितना बट अभी काफी कितना सीरियस थे। कितना अरसा लिया था? सर हार्डली 1 मंथ। ओके। सो बेसिकली 1 महीने का इलाज, लेकिन एक्सपोजर हो गया। एक्सपोजर क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जो सॉफ्ट का रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स हैं वो तो बड़े बेनाइन है, दे आर नॉट वरीसम। लेकिन आपने डेक्ला दी है, उसके जो रेजिस्टेंट म्यूटेंट्स हैं दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो अगर ये पेशेंट वेस्ट में होता तो इसका वो रेजिस्टेंट पैटर्न चेक करते और ये देखते कि ये इसका वायरस किस किस NS5A से है या सोफोस्पावेर से इसको रेजिस्टेंस है, और उसके बाद फैसला करते। हमारे पास वो फैसिलिटी मौजूद नहीं है। सो रिकमेंडेशन इसमें बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। देखें ये सिरोटिक है, हो सकता है कि ये आपको तीसरा चांस ना दे। अगर ये पेशेंट मेरे पास आएगा तो मेरे पास 2 सवाल होंगे, क्या ये अफोर्ड कर सकता है या ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर ये अफोर्ड कर सकता है, इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्राइवेट पेशेंट है, अफोर्डेबिलिटी इज नॉट एन इशू, तो ऐसी सिचुएशन में जहां जो भी दवाई पहले दे दी गई हो और जीनोटाइप 3 आप एज्यूम करें, वहां पर ट्रिपल जो थेरेपी है वॉसिवी के नाम से वो दी जाएगी। सोफोस्पावेर, वेल्पाटास्वेर एंड तीसरी जो प्रोटीएज इनहिबिटर है इसमें वो ऑक्सिलाप्राविर, और मैं उसमें राइबाविरिन भी ऐड करूंगा, बिकॉज आई नो कि इसके पास प्रॉबेबली तीसरा या चौथा चांस नहीं होगा और ही विल डीकम्पनसेट एट 1 स्टेज एंड गो फॉर लिवर ट्रांसप्लांट। अगर मैंने इसको क्योर कर दिया इस स्टेज पे, तो ये हो सकता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 to 3 years ये रीग्रेस करे और डीकम्पनसेट ना करे और इवन रीकम्पनसेट करे, यानी इसके मार्कर्स इंप्रूव हो, फाइब्रोस्कैन स्कोर, एप्री स्कोर इंप्रूव करे। सो अगर ये अफोर्ड करता है तो स्ट्रेट अवे वॉसिवी along with ribavirin for 3 months। अगर ये अफोर्ड नहीं करता या ये डीकम्पनसेटेड होता, जो कि नहीं है, ये डीकम्पनसेटेड में क्या प्रॉब्लम होता है कि आप प्रोटीएज इनहिबिटर नहीं दे सकते, जो इसमें वॉक्सिलाप्राविर है वॉसिवी में। तो ये अफोर्ड नहीं करता या ये डीकम्पनसेटेड होता, तो मेरे पास इसके लिए सिर्फ एक बेहतर ऑप्शन है, विच इज सॉफ्ट वेल राइबा फॉर 6 months, और दूसरी पुअर ऑप्शन है सॉफ्ट डैक राइबा फॉर 6 months। सो मैंने जैसे कहा मेरी चॉइस इसमें वॉसिवी एंड राइबाविरिन फॉर 3 months, सेकंड चॉइस सॉफ्ट वेल राइबा फॉर 3 months 6 months, और तीसरी चॉइस विच इज वेरी पुअर सॉफ्ट डैक राइबा फॉर 6 months with and very close follow up and ensuring कि ये इस दफा कंप्लायंट हो ट्रीटमेंट का, इसको इनकरेज करें और इसको क्लोज फॉलो अप करें। सो दिस इज व्हाट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ चॉइस नंबर 1, 2 and 3 जो कि आप दे सकते हैं। तो मुझे बताइए कि आपने क्या किया इसका। जी सर डॉक्टर आप जी सर, अभी ये पेशेंट को फ्राइडे बुलाया था और डॉक्टर असद के साथ डिस्कस करना था, तो फिर मैंने ये केस बना लिया।
तो अभी Right. फिर जिस तरह से आपने बोला है तो उसी तरह से फिर मैं चलूंगी। Right. तो आपके पास 3 choices हैं depending on patient's affordability and the availability of drugs. अगर ये पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है। सॉफ्टवेल राइबा का कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अगर उसे खरीदनी भी पड़े तो मे बी वी कैन अर्न ऑन द साइड ऑफ सॉफ्टवेल राइबा। अगर ये कॉस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, वैसे भी 3 माह का कोर्स तकरीबन 3,60,000 का होगा, और सॉफ्टवेल राइबा 3 माह का कोर्स तकरीबन 24 to 25,000 रुपीज का होगा, और सॉफ्ट डैक राइबा तो आपको मुफ्त मिल जाएगी, आप भी प्रोवाइड कर दोगे, और पंजाब हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम से भी इसको मिल जाएगी फ्री। सो ये प्राइसिंग है दवाइयों की जो मैटर करती है इस पर्टिकुलर केस में। जी, आई एम श्योर के people will have some questions इस बारे में, तो anybody wants to ask a question here? It seems it is all clear. राइट, चैट में क्वेश्चन है कि डेक्लाटास्विर को सॉफ्ट डेक्ला को गाइडलाइंस में से क्यों निकाला गया? ये सारी नंबर्स की गेम है। उनके लिए 90% इज नॉट एक्सेप्टेबल नाउ। सो अगर आप सॉफ्ट डेक राइबा के साथ कंपनसेटेड सिरोसिस में 85% रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जबकि सॉफ्ट वेल राइबा के साथ 95% रिस्पॉन्स है और वॉसेवी के साथ ऑलमोस्ट 100% है। कॉम्पनसेटेड सिरोटिक की बात कर रहा हूं। सो इट इज ऑल नंबर्स और एफिकेसी। ये अब वो जमाना नहीं है इंटरफ्रॉन का जहां पर 30% और 40% इन जीनोटाइप 1 and 60% in genotype 3 was standard acceptable results. अब ये बात नहीं है, आप चाहते हैं 95 to 100% response rates. So that was the reason to remove soft DEC from beyond 2016. 2016 तक इसको रखा गया है गाइडलाइंस में. So that is the reason. It is all the efficacy कि कितने परसेंटेज SVR आप अचीव कर रहे हैं विद द पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन. सो दैट इज, और आप इजिप्ट में, पाकिस्तान में हम यूज कर रहे हैं अरसे से, लेकिन हमारे रिस्पॉन्सेज ट्रीटमेंट नाइव में तो 95 के करीब हैं, लेकिन सिरोटिक्स में 85 के करीब, 85 to 90%, which is not acceptable to the West. So, ठीक है, आपने एक ट्राई कर ली सॉफ्ट डैक की, अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करता तो यू हैव टू डू मोर, एंड इट इज चॉइस नंबर 1 वॉसेवी, चॉइस नंबर 2 सॉफ्टवेल, और थर्ड पुअर चॉइस ये है कि आप सॉफ्ट डैक राइबा को दोबारा इस्तेमाल करें, विच इज जस्ट लाइक making the same mistake over and over again. So status को क्या है, आप वही काम करें वही रिजल्ट आएगा. So आप वही ट्रीटमेंट जो फेल हुई है वही यूज करेंगे, वही रिजल्ट आएगा. So it is better to move on and try and achieve a better cure rate, and that is why it was removed from the guidelines. Although बहुत सारी underdeveloped countries में it is still the standard of care. Any other question? कोई कमेंट देना चाहे? Kiran, it seems it's all clear. 2 cases covered in say 40 minutes. That's So, great. all over to you.
श्योर सर, एक मुझे छोटी सी एक अनाउंसमेंट करनी है कि ओवर अराउंड आई थिंक अगले 2 महीने में वी विल बी शिफ्टिंग दिस प्रोग्राम टू एन आई एको विच इज हम यूजुअली वैसे आई एको इस्तेमाल करते थे अपना डेटा कन्वर्ट करने में फॉर द प्रोजेक्ट एको के लिए। तो दे हैव इंट्रोड्यूस दिस न्यू प्रोग्राम इन आई एको, जिसमें हम आई एको के थ्रू इस जूम सेशन में आया करेंगे। इसका एडवांटेज ये होगा कि हम सबका डाटा प्रोजेक्ट एको के पास होगा। इसकी वजह से हमें बहुत सी सहूलियत आगे सहूलियात मुयसर हो जाएंगी, जिसमें हमें ईमेल्स टाइम पे आया करेंगी। इसके अलावा आपको वर्ल्ड वाइड जो ग्लोबल आपकी प्रेजेंस है प्रोजेक्ट एको की, क्या कौन से सेशन हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाया करेगा। तो दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, हमें भी कुछ समझने में टाइम लगेगा। आज हमारी पहली क्लास थी तो लेकिन ये है कि इट्स अ गुड न्यूज, काम आसान भी हो रहा है और काम फायदेमंद भी होता है। तो मैं पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाह रही हूँ कि आगे जाके हमारे लिए और हमारे पूरे प्रोजेक्ट के लिए जरा आसानियां पैदा हो गई। इसके अलावा वो जिस तरह आज डॉक्टर मारिया ने अपना केस प्रेजेंट किया, वी डू इनकरेज कि आप लोग अपने केसेस लेकर आए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मेट मौजूद है और हम आपको इसमें मदद भी कर सकते हैं, प्रेजेंट करने में भी और फॉर्मेट के इस्तेमाल में भी। तो वी आर करंटली रनिंग ये हेपेटाइटिस एको का प्रोग्राम एंड आईबीडी एको के सेशंस हो रहे हैं। अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो यू कैन रजिस्टर विद अस। इसके अलावा हमारे प्रीवियस जो सेशंस हैं वो यूट्यूब के चैनल पे अपलोड हो रहे हैं और ये वाला सेशन भी आपको अपलोडेड मिलेगा। और इसके अलावा वी आर ग्रेटफुल टू यू सर एंड थैंकफुल टू पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी एंड फेरोसिस लेबोरेटरी लिमिटेड फॉर द अनरिस्ट्रिक्टेड एजुकेशनल ग्रांट एंड टीम एट पारसा ट्रस्ट एंड पारसा एको पाकिस्तान। तो अगर कोई और सवालात वगैरह नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज फ्रॉम मी और उजैर यू कैन कॉल ऑफ द मीटिंग। Sure, ma'am. Allah Hafiz, everybody. Thank you. अल्लाह हाफिज।